أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم پڑھے ہیں بنیادی گرامر کے اسلوب، گرامر کے فاؤنڈیشن فنڈامنٹل پرنسپلز پڑھے تھے۔ اب انشاءاللہ باذن اللہ اب ہم تھوڑا سا اس کے اندر ڈیپ جائیں۔ جو کل آپ کے بہت سارے سوالات تھے خاص طور سے ضمائر کے متعلق، وہ بنیاد پڑے تک آپ کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس لیے میں اب اس کی بنیاد لینا کا شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کو کچھ الفاظ کے معنی سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب تک کا سرسری طور سے آپ نے پڑھ لیے، ہم پڑھا دیے، لیکن اب اس کے بعد میں اگر اعراب کی شکل میں اگر آپ کو دیکھنا ہے کسی چیز کو، تو اس کو انگلش میں، اردو میں، عربی میں کیا بولتے ہیں، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بول کر اس کو پکا کر لیجئے تاکہ اس کا ہم ذکر کریں تو پھر آپ پوچھنا نہیں یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے اور لکھیے۔ لکھ کر میں آپ کو ریپیٹ کرواتا ہوں تو پھر آپ کو اس کی بات کرنے میں آسانی آئے گی۔ اسم جو آتے ہیں، اسم جو عربی میں آتے ہیں وہ تین شکلوں میں آتے ہیں۔ کوئی بھی اسم آئے گا تو کتنی شکل میں آئے گا؟ تین شکلوں میں آئے گا۔ اب یہ جو پرنسپل ہے تین شکلوں میں آتا ہے، اس کو تھوڑا سا بدل کے دیکھیں گے ہم، اور آج پہلی بار دیکھیں گے کہ بھئی اسم جب آئے گا کوئی جملے میں تو سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھ میں آنا سینٹینس کے اندر اسم آ رہا ہے تو اسم کا رول کیا ہے، یعنی وہ کس قسم کا رول ادا کر رہا ہے۔ دو ٹائپ کا اسم آنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کام آتا ہے، کیا آتا ہے؟ کام۔ سب سے پہلی چیز آپ کو یاد رکھنا پڑے گا آپ سے، انگلش میں کام کو کیا بولتے ہیں؟ ورک۔ نہیں، وہ ورک جو ہے گرامر کی زبان میں ورک کیا ہے؟ ورک۔ کسی کام کو نام دیا ہے، کھا بولے تو یوں، پی بولے تو یوں، ایکشن ہے نا۔ گھوم بولے تو ٹھیک ہے یوں، بیٹھ بولے تو یوں، یہ کام کے نام ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ورب۔ اچھا، جس کو انگلش میں کیا بولیں گے، اپنا عربی میں کیا بولیں گے؟ ہاں، یہ اب اس کے بعد میں آپ بھولیں گے نہیں۔ فعلن بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ فعلن۔ اب اس کے بعد میں آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کو بھولے، یہ غلط لکھا میں، سوری۔ اس کو یہ بولیں گے، کیا بولیں گے؟ فعل۔ کیا بولیں گے؟ فعلن۔ کیا بولیں گے؟ فعلن۔ فعل بولتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ فعل۔ اب سے کوئی بھی یہ بھولیں گے نہیں کہ ورڈ کو کیا بولیں گے، بولو سب لوگ۔ فعلن۔ اور مراٹھی والے، ہندی والے کیا بولیں گے؟ کام، کریا پد۔ ہاں، کام وام فالتو باتیں نہیں کریں گے۔ وہ جو جاہل ہے انہیں بولیں گے کام، ٹھیک ہے۔ حرکت بولیں گے، کیا ہے؟ حرکت۔ باڈی نے کرے والی حرکت، مشین نے کرے والی حرکت، بیل نے کرے والی حرکت، کوئی بھی چیز کی حرکت کا نام، ایکسلریشن کا نام ہے فعل۔ Any body comes into motion is verb۔ اس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے ایک ورڈ سے، اس کو بولتے ہیں verb، اس کو عربی میں بولتے ہیں فعل،
اس کو مراٹھی میں بولتے क्रिया पद. पद यानी ऐसा लफ्ज जिसके बारे में क्रिया का डिस्क्रिप्शन होता है. यहां तक समझा सबको? यस. अब फेल के अपने उसूल है. 3 हरफी होता है. माजी का रूल है कि तीनों पे जबर होगा, ऐन कलीमा तब्दील शुदा होगा. यहां तक का फेल को बाजू रख दो. आपको अच्छी तरह से फेल हम समझा चुके हैं. माजी बहुत अच्छा आप पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन अब जो आप करना है ये फेल है. इसका मतलब क्या है? कोई तो भी काम कर रहा है, कोई तो भी एक्शन कर रहा है, तो एक्शन करने वाला क्या होता है? एक्शन करने वाला क्या बोलते हैं भाई हम? फाइल. हाँ, पहले इंग्लिश में देख लो. डूअर. सब्जेक्ट नहीं, डोअर ना पुअर, सब्जेक्ट. डोअर अलग होता है, ये सब्जेक्ट हो गया. जिसको क्या बोलेंगे? करने वाला. अगर हम बोलेंगे खाया, तो जब तक का खाने वाला नहीं होगा तो खाया क्या कहेगा? तो क्या बोलेंगे उसको? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. अब अरबी में क्या बोलेंगे? फाइल. तो जरा फिर से रिपीट कीजिए मुझे. जब फेल आता है, बोलो. जब फेल आता है तो फाइल आना जरूरी है, बगैर फाइल का फेल आ ही नहीं सकता. अच्छा अच्छा अच्छा. अच्छा अच्छा क्या है भाई? क्या एक्शन ही एक्शन हो रहा है तो करने वाला है. और डू दुनिया करने में वाला. अब ये कुर्सी है यहाँ रखी हुई है, हाँ? अभी ने खुद को खुद भागती गई इधर उधर, कोई नहीं भगाने ना? वाला नहीं. हाँ, भगाना. बॉडी टू कम इन मोशन रिक्वायर्स काइंड ऑफ अ फोर्स. सही. तो फोर्स एक्सर्ट कौन करेगा? करने वाला करेगा. उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, फाइल. अब इसको तुम्हारे मराठी वाले क्या बोलेंगे भाई? करता. हाँ, करता करतो क्रिया. क्रिया करत्याला करत नाही. करेक्ट आहे. समझे? हो. करता क्रियापद. हाँ, करता रहेगा तो क्रिया होगी. और उसको अरबी में क्या बोलेंगे अब सब? फाइल. फाइल. और काम को जो एक्शन हुआ उसको बोलेंगे फेल. अब फेल हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, हम इसको मैं मिटा दिया. माजी पढ़े हमने, माजी से ताल्लुक है भी हमारा. तो अभी हमारा पढ़ने का क्या है मालूम क्या? किसी सब्जेक्ट ने कोई हरकत किया तो सब्जेक्ट यानी करने वाले को बोलेंगे फाइल. बोलो. करने वाले के फेल करने वाले को बोलेंगे फाइल. हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? राइट. अच्छा, अब सबसे अहम बात आप लिख रहे क्या? हाँ. लिखते चलिए. अब फाइल को कैसा बताना यार? फाइल बताने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका होना. अपने पास तो अपन जबान पढ़ रहे हैं, ठीक है. जैसा मैंने कहा था इसके पहले कि आप एक बड़े हॉस्पिटल में चले गए, वहां पर सब लोग व्हाइट एप्रन पहने हुए हैं. एप्रन मालूम, बड़ा कोट पहनते हैं व्हाइट. डॉक्टर भी, नर्स भी, कंपाउंडर भी, फार्मासिस्ट भी. तो कोई नशा नहीं होना कि नहीं डॉक्टर है बोलते. ये तो पूरे एक ही कपड़े में है, कैसा पैसा नहीं? उसी तरह पहचानने के लिए फाइल जब आता है, फाइल जब आता है तो एक पेश या 2 पेश लाता है. सब्जेक्ट के ऊपर क्या मिलेगा आपको हमेशा? बोलो. एक पेश या 2 पेश. एक पेश या 2 पेश. इसका रफा में नाम क्या है? आयराबी हालत है. रफा. अब इसके बाद रिपीट नहीं होने वाला है. आप दीवानी चाले करेंगे तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँ. आपका काम है लिखना, पढ़ना, समझना. बात समझे? यस. जी. तो अब हमारा फेल आ रहा है. फाइल पर हमेशा एक पेश या 2 पेश आते. माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. करने वाले के पहचान है, उस पर एक पेश मिलेगा या 2 पेश मिलेगी. तो करने वाले को एक थोबड़ा रहता और उसके चेहरे को नाम रहता. अब यहाँ पे करने वाला जैद है. क्या है? जैद. वाला जैद. और जैद ने मारा किसको? हामिद को. हामिद को.
तो ये हामिद जैद कैसा पहचानेंगे, हामिद ने मारा जैद को या जैद ने मारा हामिद को, ये समझने का कोई तरीका ही नहीं है। ये तरीका आने के लिए जैद के ऊपर जैदुन होगा, पेश और जैदुन ये बात का डिकोड करके समझ जाना है हमको। अरे बाबा ये मारने वाला है। अब मैं थोड़ा सा जबान में बोलूंगा तो अरे इन्हें हीरो है यार, हीरो के पास में एक पेश या दो पेश होते हैं। और वही मैं थोड़ा सा जबान में बोलता हूं, विलन जो होता है मार खाने वाला, उसके पास एक या दो जबर होते हैं। तो किसी जुमले को देखकर अरबी में समझने के लिए यही एक तरीका है। जी सर। तो बोलो फाइल की निशानी क्या है, सब लोग बोलो जी मुझे। उसके जबर, ऊपर एक पेश एक या दो पेश पेश? या दो पेश हो। दो पेश या फाइल तीन एक जबर या दो जबर से एक जबर। आंखों से पहचानना है, आंखों से, और आवाज से पहचानना है। समझे? जी सर। अब इब्राहिम है तो उनके ऊपर तनवीन नहीं आती, इब्राहिम आएगा। क्या आएगा? इब्राहिमू इब्राहिम हाँ, समझ जाना इब्राहिम ने करे। दाऊद आएंगे तो दाऊदू आता है। दाऊद तब बचन अच्छा दाऊद करने वाले जो है दाऊद है। तो दो तरीके हैं। देखिए अब हमने लिखाई में तो पढ़ रहे, तो कुरान पढ़ के समझ गए कि पेश आया तो ये करने वाली की निशानी है। और जब आप खिरत सुन रहे हैं, कारी साहब पढ़ रहे हैं, तो आपको बोल रहे हैं उन्होंने खतला दाऊदू जालूता, तो दाऊद के आखिरी लेटर पे वो दिखते, बोला अच्छा दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। किसका किए? जालूत का। जालूत तो जालूत के आखिरी लेटर पे जबर आ रहा, आओ दाऊद के आखिरी लेटर पे पेश आ रहा। तो पेश कौन होगा? हीरो, जंगली जबान में। और विलन के ऊपर क्या रहा? एक जबर, एक या दो जबर। तो यहां तक पक्का हो गया। आओ अब इसको ग्रामर की जबान में बोलो, ग्रामर की जबान में बोलते तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। अगर बोलेंगे तो करने वाला रफा है, बोलो, करने वाला करने रफा वाला है। रफा है, और जो विलन है जिसके ऊपर काम हुआ वो नसब है। जिसके ऊपर काम हुआ वो नसब है। वो नसब है। हाँ, अभी मुझे 25 सवाल कर सकते हैं आप, बाद में ना दीवाने बनो ना दीवाने की एक्टिंग करो। करने वाला रफा है। लिख के रखो, करने वाले की निशानी क्या है? रफा है। करने वाले रफा। अच्छा, वेरी गुड शाबाश। तो करने वाले की निशानी रफा नहीं है, करने वाले की निशानी एक पेश या दो पेश है। उसको बोलते हालत रफा में। किस हालत में भाई? वो मेकअप वेकअप करा हुआ ब्यूटीफुल, अपना सोना उठा बोलते स्नो पाउडर लगाया हुआ हीरो। किस हालत में भाई? तो हाँ, मैं रफा हालत में हूँ। क्यों? मैं हीरो हूँ। अब विलन ये जख्मी है, इधर मार लगा, इधर मार, इधर बुड्ढो, इधर बुड्ढो, इधर खून निकल रहा। हालत नसब में ही जीने थे तो जबर है। बराबर गया के दिमाग में? गया। पक्का? यस यस सर। अच्छा, करने वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? बोलो फाइल। फाइल बोलो फाइल। फाइल फाइल। और विलन को क्या बोलेंगे? मफूल। मफूल। अब ये याद रहना है आपको, तीन चीजें याद रखो। करने वाला फाइल, हरकत को बोलेंगे फियल, और जिस पर काम हुआ उसको बोलेंगे मफूल। फाइल फियल मफूल। बस बस बस। इसको रट्टा मारो 10 बार, बोलो, मैं रुकता हूं। जी सर। फाइल फियल फियलुन मफूल। हाँ, मैं लिखता हूँ या फाइल लिख लो। फियल यही चीज मफूल। मैं लिख रहा हूं, जरा लिखो। क्योंकि ये जी सर। अल्फाज जब तक नहीं समझेंगे आप, जब तक का गोल 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 फिरते रहेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं आपके पहचान के लिए। तीनों चीजों लिखो, रटो, सिखाओ। फाइलुन जो होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जिसको अकल छोटी है उन्हें बोलो हीरो रहता हूं। समझ में आया? यस इसको पहचानने का तरीका है,
एक पेश Yeah. या दो पेश। ओके हो गया क्या ये? यस अगर हमने पूछे किसने काम किया तो नहीं आप सर। बोलना फाइल ने काम किया। कैसा पहचाने तो बोलना एक पेज दिख रहा है या दो पेज दिख रहे हैं। और हरकत को क्या बोलेंगे? फेल फेल फिअलुन। ये फाइलुन, ये फिअलुन। इसको क्या बोलेंगे? वर्ड। फिअलुन। अब वर्ड तीन किस्म के हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है। यस अब तीसरी चीज आ रही है मीम के साथ, मफ करो, मफ नफ मफऊल। मफूलुन। बोलो मफऊल। मफूल, मफूलुन, मफूलुन मफूलुन। मफऊलुन मफूलुन क्या है भाई? जिसने मार खाया, जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और जो दीवाने हैं उनके लिए विलन। और इसकी पहचान है एक जबर या दो जबर। साल बाबा मच्छर आ जाती बाबा हमारे में। माइक बंद करो, जो मच्छर अक्षर भाग जाएंगे। तो ये जो इसको बोलते हैं एराबी हालत में हालत रफा, और इसको बोलते हैं हालत नसब। चलो लिखो, रट्टा मारो इसको। अगर ये नहीं समझेंगे आप तीनों चीजें जो लिखा मैं, तो और भी 2 साल आपको अरबी नहीं समझ में। हो गया लिखना तो बोलो मेरे। फिर रिपीट करो मेरे साथ। फाइलुन फाइलुन। सब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस का हीरो होता है। उसकी पहचान शक्ल आंखों से देख के पहचानने के लिए एक पेश या दो पेश। कान से सुनेंगे तो ऊ या उन, उसको रफा कहते हैं। अब ये काम का नाम है वर्ब। ये तो आपको सब आता है, फाला, फाउला, फाइला, बहुत सीखे हमने, ये आता है। अब ये जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है, जिसको हम अरबी वाले मफऊलुन कहते हैं, इंग्लिश वाले ऑब्जेक्ट कहते हैं, मराठी वाले कर्म कहते हैं, और ये मार खाया तो जंगली लोमा विलन कहते हैं। भाई माइक बंद करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। हाँ सदफ कहाँ है बोला? एक जबर या दो जबर देखेंगे आंखों को तो आप समझ जाना ये विलन साहब है, मार खाए हुए है। और आवाज से पहचाना है तो आ या अन आवाज आएंगी, इसको कहते हैं हालत नसब। सबको समझा भाई यहाँ तक का? यस जी सर। हाँ, एक बार मेरे को कोई पढ़ के समझा के बोलो। मैं बोलूंगा। बोल। सब्जेक्ट मतलब फाइलुन, फाइलुन मतलब सब्जेक्ट जो करने वाला है, काम करने वाला है, क्रिया करने वाला है, उसको हीरो बोलते। उसकी जंगली जबान में हीरो बोलते। और उसको पहचानने का तरीका है कि उस पे एक पेश नहीं तो दो पेश आएंगे। वो कैसा पहचानेंगे? आंखों से देखकर पहचानने के लिए एक पेश है या दो पेश है। आवाज से कैसा पहचानेंगे? ऊ या उन, ऊ या ऊ आएगा। वो या उन है, रुको जरा, ऊ आएगा या उन आएगा, राइट। और इसका नाम ग्रामर ने दिया है रफा, हालत रफा में रहेगा।
तो यहाँ से यहाँ जुड़ाएंगे हम, तो फाइल हमेशा रफा हालत में होता है और फाइल हमेशा रफा हालत में होता है. और उन्हें एक पेज कैरी करता है या दो पेज कैरी करता है. हाउ डन. डन. ये तो पढ़ा हुआ है हमारा फीएल पूरा पढ़ चुके हैं. फीएल पूरा पढ़े वाला है. फुल मतलब ऑब्जेक्ट सादी भाषा में विलन उसकी पहचाने एक जबर या दो जबर होंगे और वो आंखों से दिखेगा और कान से आ या अन या आ आएगा. अरे नहीं रे आ आएगा या अन आएगा. अच्छा आ या अन आएगा. अच्छा राइट. यहाँ पे ऊ या उन आएगा. यहाँ पे आ या अन आएगा. आ या ऊ उन या आ अन आएगा और इधर ये हालत नसब में रहेगा. और इसका याद रखने का ये फूल है. फूल यानी फुलिश. समझ गया. यहाँ तक का किसी को और समझा के बोलना है. नहीं समझा बोलिए. इसके बाद हम फास्ट ट्रैक पे चलने वाले हैं, तो आपको ये बातें फिर से दोहराने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. ओके सर. अब इसी का प्रैक्टिकल देखेंगे. अब ये मार रहा देखो कौन है ये. ये हीरो है. या तो अपने को तस्वीर देखी तो समझ में आ रही, लेकिन पढ़ने में समझ में आना. ये काला दिख रहा है तो धुन मारा है. ये मारने वाला हीरो है. ये हीरो हमारे हीरो ने मारा. ये हो गया ज़ैदुन. मारने वाला क्या है. एक पेज या दो पेज लाएगा. ये कौन है. दरबा फियलुन. फियल है. वर्ड को फियल. मारने वाले को फाइलुन हीरो. और ये पट्टे ने मार खाया जिसका नाम क्या हामिद है. तो हामिद का क्या हो गया. दो जबर दन 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 मफूल. राइट. मफूल. अब ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको सिखा दिया. आप इसको छोड़ेंगे नहीं. कल आएंगे. कल तो नहीं, छुट्टियां हैं 2 दिन, तो आप बिल्कुल पढ़ लिख के ताजे बनकर आएंगे और फिर हम पढ़ेंगे माशाअल्लाह. चलिए अब आगे देखते हैं. कुछ अच्छी चीजें बताने लगा हूं मैं. देखो डोर आपने बोले थे ना रफा हालत में होता है. 28 खत्म हो गए ना. समझ में आया आपको. जी. रफा हालत में कौन होता है. हीरो. मारने वाला. काम करने वाला. सब्जेक्ट. ठीक है. यस. कौन सुन रहे हैं. अच्छा अब मुझे देख के ये पढ़ के बताओ. टीचर दाखिल हुआ क्लासरूम में. इसमें करने वाला फाइल कौन है. टीचर. टीचर को बोलते मुदर्रिस. अब मुदर्रिस को आप बनाइए रफा. मुदर्रिसुन ये होगा नकीरा. मारिफा बनाइए. अल मुदर्रिसु. शाबाश. एक्सलेंट. अब यहाँ पर घुसा होने क्लास में घुसा. दाखिल होने के लिए अपने पास वे फेल हम सीख चुके हैं. क्या दाखला है ना. तो क्या हो गया हमारा पूरा जुमला क्या बन गया. पहले वर्ब लेंगे दाखला. दखलल मुदर्रिसु. तो करने वाला कौन है. मुदर्रिस. अब मुदर्रिस के दाखिल होने पर सवाल करो क्या या किसे. पूछो क्या या किसे. क्या दाखिल हुआ. कोई जॉब मिलता नहीं मिलता. नहीं. किसी दाखिल नहीं मिलता. तो ये ऐसा जो फेल रहता है उसको हमने बोले थे. इसको क्या कहेंगे. मुताद्दी बोलेंगे या दूसरा क्या नाम दिया था मैंने. उसको याद है. याद करो. ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताया था मैंने. लाजिम और मुताद्दी. लिख के रखो. लिखो. चलो पेन लो.
एक को बोलते हैं मुताद्दी और दूसरे को बोलते हैं, माजिद लिख रहा क्या? हाँ, मुताती और लाजिम। हाँ, जब लाजिम होगा तो उसको विलन की जरूरत नहीं है। बोलो, लाजिम को विलेन की जरूरत नहीं। अब देखो मैं दाखिल हुआ तो उसके अंदर क्या जरूरत है, कुछ चीज की जरूरत है क्या? हो गया, सेंटेंस उसमें कंप्लीट हो गया। लेकिन अरे भाई ये कौन बड़बड़ कर रहे हैं यार, उसको बंद करो, उनको समझाओ, बहुत अहम बात सीख रहे हैं हम। आप मत पढ़ो एक बार, लेकिन दूसरों को भटकाओ मत। बहुत जुल्म करते हो। मुताद्दी क्या होता है भाई? जिसको विलेन की जरूरत है उसको क्या बोलते हैं? मुताद्दी। अच्छा 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 अच्छा। जिसको नहीं है उसको लाजिम। एक है ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। ओ, तो यहाँ पर देखो, ये टीचर साहब द लगा हुआ है उनको, इसलिए बन गए अल मुदर्रिस हो, और दाखिल होने को बोलते दाखला, तो जुमला बन गया दाखल अल मुदर्रिस हो। अब क्लासरूम में बोलना है तो क्या बोलेंगे? फिल फसली। फिल फसली एक मुरक्कब है, ये मफूल नहीं है, ये डिटेल है, मालूमात है एक्स्ट्रा। क्या बोला मैंने? पहले अगर बोला मुदर्रिस दाखिल हुआ, तो आप बोले सर दाखिल तो हुआ लेकिन काय में दाखिल हुआ बोल रहे नहीं ना, क्लास में दाखिल हुआ, तो फी आ गया और फसली, फी की वजह से फसली हो गया। चलो छोड़ दो, वहां तक छोड़ो, आगे चलो। अगला देखो, उसका स्टूडेंट था सो रहा खामोशी से, बच्चे। तो अब यहां पर देखना है भाई, ये बन रहा कैसा करने वाला, देखो उसका याद आया, वो बोले तो क्या? उसका डिटैच प्रोनाउन उसका बोले तो हु हो गया वो। अब स्टूडेंट बोले तो क्या है भाई? तालिब तालिबुन। तालिबुन। कुन तो तालिबुन को हल्का करो, तालिबू तालिबू तालिबु। तालिबु। उसका बोले तो हु। हु। तालिबू तालिबु अखफ करा हुआ इसम है, ये मुदाफ है, और ये जो मुदाफ इलैहि बैठा है उसकी जगह बैठा है। अब जरा ये आगे पढ़ेंगे अपन। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये कल जबर परेशानी हो रही थी, इसका एराब कैसा पहचानेंगे? इस पे एराब तो पेश है, तो आपको आदत पड़ गई पेश बोले तो रफा बोलने की। तो मैं यही बात आज अच्छा पढ़ाने वाला हूँ और आपको पूरे कल के आपके डाउट्स खत्म कर देगा। ठीक है, चलेंगे आगे वापस। तो पहले ही समझ में आ गया आपको क्या क्या करना था आपको, कि कर सेंटेंस के क्या क्या चीजें हैं। 3 चीजें सीखी हमने, क्या क्या है? मैं बोलो। फेल फाइल मफूल। फेल फाइल क्लियर मफूल फाइल मफूल, फेल माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, एक्सलेंट। तो आज हम डिटेल लेवल, हाई लेवल में प्रोनाउंस पढ़ने चले हैं, और वो प्रोनाउंस को रखेंगे फेल फाइल मफूल की जगह पर, और हम समझेंगे उसके एराब क्या होते हैं। ओके। अच्छा, ये सब सीखने से पहले मैं कुछ चीज बताने लगा हूं। एक चीज, जब हम इसमें वापस आएंगे पढ़ने के लिए डिटेल, तो ये चीजें पढ़ेंगे, राइट? आज मैं बताने लगा हूं वो बातें आपने लिख के रखना है और याद करना है। अच्छा, सबसे पहली चीज बताने लगा हूं मैं, जिसको बोलते हैं हम प्रो नाउन। प्रो बोले तो जैसा, नाउन की जगह पे बैठने वाला, उसके जैसा इसम। अगर मैं हामिद लिखा तो हामिद एक मर्द है, उसके जगह क्या आएगा? हुआ हुआ। अगर मैंने जैनब लिखा उसकी जगह क्या आएगा? किया किया। माशाल्लाह, वेरी गुड, किया। आया समझ आपको? इसको प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन की जगह जिसको इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो। प्रोनाउन। प्रोनाउन एक को बोलते हैं दमीर और जमा को बोलते हैं दमायर। जमाइर ठीक है भाई? दमीर दमायर। यहां तक समझा सबको? ओ, दमीर और दमायर समझ गया? बिल्कुल। जी सर माशाल्लाह।
बहुत स्मार्ट है आप लोग। तो बिल्कुल एबीसीडी से हम हायर लेवल तक जा रहे हैं, ओके, ताकि अब इसके बाद में आप जो है वेरी स्मार्ट बॉय बोलना लोगों ने आपको क्या बोलना। तो जब प्रोनाउंस जमा हो जाते हैं उनको दमायर कहते हैं, एक रहे तो क्या बोलते हैं, दमीर। अब प्रोनाउन के अंदर 3 हिस्से होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, खाली बता रहा हूं मैं आपको। एक प्रोनाउन को बोले थे हमने सेपरेट आने वाला प्रोनाउन, बोला सेपरेट आने वाला डिटैच प्रोनाउन। हाँ, इसको सेपरेट को बोलते हैं मुनफसिल, फासले पे आने वाला, फासले पे आने वाला, अकेला, बेचारा, अलोन, किसके साथ जुड़कर नहीं आता। ठीक है, याद आ गया आपको? हेलो, हाँ, फासले पे आने वाले मालूम ना आपको, वापस रिपीट करूंगा मैं। और दूसरा कौन है, छिटक के आने वाला, मुत्तसिल जमायर। मुत्तसिल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपन ने बोले थे अटैच प्रोनाउन। अटैच pronoun. और एक तीसरा था, 2 थे, ग्रुप 2 में आते, छुट्टे हैं, छुट्टी आते, वो कौन कौन थे? हुआ या डिटैच हाँ, ये रहते हैं मुस्ततिर, बोलो मुस्ततिर जमायर। मुस्ततिर। हिडन, मुस्ततिर। छुपा हुआ, मुस्ततिर। मुस्ततिर। छुपा हुआ। हाँ, समझ में आया भैया? नहीं। तो एक है मुनफसिल, दूसरा है मुत्तसिल, और तीसरी जात है छुपी हुई। सवाल है आपसे कोई? तीनों के ये आखिरी वाले के 2 एग्जांपल बोलो ना। वो सब बाद में दीजिए। मुत्तसिल के एग्जाम्पल बहुत सारे देने वाले हैं, अभी पढ़ेगा किताबुहु, बोलो किताबुहु। छिटक क्या है ना। हाउ। अब याद रखो, मैं टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पर याद रखो। इस्म के बोलो, इस्म के गोद में, गोद में बैठ कर आता, बैठ कर आता। ये औरत को बोलो या कौन है, बहुत सता रही है औरत। इस्म के गोद में बैठ के आता। देखो ये इस्म लाएंगे, मुत्तसिल। हाँ, किताब हो, और इसको इन्हें गोद में बैठेगा, कौन है ये? हु किताबुहु। हाँ, की किताब। ये हो जो है, अब ये अकेला नहीं है, ये इसके साथ जुड़ गया है, किताबुहु पढ़ेंगे इसको, मैंने प्लस आपको समझने के लिए लगाया। तो ये क्या है, कहाँ बैठा इन्हें? किताब के गोद में। इस्म के गोद में। गोद में। ओ, इस्म के गोद तो में। ऐसे जितने भी आएंगे माजिद साहब, हाँ, ये किसकी जगह पे आए हुए? ये हु किसकी जगह पे है? ये हुआ के जगह। हुआ के जगह पे नहीं है, ठीक है, हुआ से बना हुआ है, लेकिन दरअसल ये ओरिजिनल था। ओरिजिनल क्या था यहाँ पे? प्रोनाउन कब आता है? नाउन की जगह पे आता है ना। नाउन की जगह है। तो पहले नाउन लिखेंगे अपन, तो आपको क्लियर हो जाता। किताब, आखफ किया मतलब, किताबु, इसको क्या बोलेंगे? मुदाफ। मुदाफ। मुदाफ कैसा होता है? आखफ किया हुआ, मारिफा इसमें होता है, और आखिरी में पेश। हाँ, अब किसकी है किताब बताने का आपने को? तो हमने कहा ज़ैदुन था, तो ये दुन हटा के इन्होंने क्या डिमांड करा? ज़ैदिन। बोलो किताबु ज़ैदिन। किताबु ज़ैदिन। अब ज़ैद की किताब। ज़ैद की किताब। ज़ैद की किताब। अब आप बोलते चलो, ज़ैद की किताब 5 बार बोलना। ज़ैद की किताब, ज़ैद की किताब, ज़ैद की किताब, ज़ैद की किताब। अरे जितने बार बोल रहे भाई ज़ैद का नाम, नाक में दम हो रहा, तो बोलेंगे उसकी किताब। ज़ैद की किताबुहु। किताबुहु, उसकी किताब। बस खत्म हो गया, चीज करना था। अब मुझे बताओ ज़ैद की एराबी हालत क्या है? ज़ैद की एराबी हालत जर
हाँ? जर है जर 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 हालती तो जर उसकी है जगह बैठने वाली की क्या होंगी हालत? जरिच होंगी। जरिच होंगी, राइट। जर भले ही पेश दिख रहा है लेकिन जर है। माशाअल्लाह, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड, एस्टिमेट। हिसाब लगाए हम। हाँ ले ली। ऐसा लगाना देखो बाजी, मैं 3 बार बोल दिया, मैं आपको टोटल डिलीट कर दूंगा, क्लास में से निकाल ही दूंगा। हाँ, तो जैद, तो मैं ऐसा बताना लगा हूं माजिद साहब जी। कि ये मस्जिद है, ये मीनारा दिख रहा है, ये मस्जिद है। मस्जिद में बैठा हुआ आदमी कौन होगा? नमाजी। बराबर। और तो नहीं बैठता ना। नहीं नहीं। तो मस्जिद को देख के समझ जा रहे पुनी ने नमाजी है। हाँ, राइट। तो वैसे ही जैद की जगह बैठे ही देख के समझ जा रहे, अरे बाबा जैद ज़ेर में था तो इन्हें भी ज़ेर में है, इसलिए इसको जर्री हालत बोलते हैं। बराबर। कैसा पहचाने भाई? जगह को देख के पहचाने। बोलो। जगह को देख के पहचान लिए। हाँ, वो जैदीन की जगह है, इसलिए वो जरूरत तो पेश दिख रहा है, लेकिन तो उससे पहला रूल ये है, आपको बताने लगूंगा मैं, जब आपको पूरा समझ में आए। एक माजिद ने पूछा था भाई ये क्या है, बोल के बता दिया मैंने, ठीक है। बराबर। जी जी। फिर वापस चलते हैं। दमायर के 3 शक्लें होती है। दमायर की 3 शक्लें होती है। अगर मैंने कहा दरबा हामिदन, बोलो। जरबा हामिदन। हामिदन। हामिदन तो विलन है। बराबर। कैसा पहचाने भाई? जबर आ गया ना। दो जबर। दो जबर आ गया, हालत नसर तो इसका करने वाला कहाँ है? एक पेश अपने को 14 में से चेक करना पड़ता है, ये 2 में से है कि 12 में से है? 2 में से। हाँ, दरबा बोल रहे तो 3 जबर है, बोलो 3 जबर है। उसने किया, बराबर। उसने किया, बराबर। तो उसने मारा, किसने मारा? हुआ ने मारा। उसने मारा हामिद को। हामिद को, तो हामिदन हो गया ना। हाँ समझे? हाँ। अब उसने सोचो तो आप। छुपा वाला है जबर में। हाँ, हुआ पीछे छुपा हुआ है, हाँ, जबर भेदो में कुछ भी नहीं है। बराबर। फाला में, ला में। हाँ, कुछ भी नया नया बोल रहे हैं तुम। जरबा। फाला जब आता है, पहला सेगा आता है, तो उसका 2 चांस है आने के। फाला आएगा तो हुआ फाला आ सकता है, या हुआ निकाल देंगे तो माजिदुन आ जाएगा। बराबर। फाला माजिदुन, वो तो माजिद नहीं किया, और उसको छुपा देंगे तो क्या बनेगा? हुआ फाला। अब हुआ हिडन है ना, दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। सब समझ रहे क्या? हो। तो ये जो लिखा मैंने बीच का, ये 2 जगह आता है। अगर मैंने कहा जरबत हामिदन, बोलो जरबत। जरबत यानी औरत। औरत अब औरत का नाम आ रहा क्या? नहीं आ रहा। तो ही आ छुपी हुई है। बराबर। अब अगर औरत बाहर निकाले तो निकालेंगे अपन, जरबत जैनबु हामिदन। जैनबु, आवाज सुनो, आवाज सुनो। जैनबु बु बु बु, हीरो का नाम। बराबर। पेश में है। पेश में है, तो जैनब ने मारी, किसको मारी? हामिदन। हामिदिन। ठीक है, चलो आगे हमें। तो ये हुआ और ही आपको बोलते हैं मुस्ततिर ज़मीर, बोलो। मुस्ततिर ज़मीर। हुआ को मुत्तसिर ज़मीर बोलते कहते हैं। मुत्तसिल नहीं, मुस्ततिर। हुआ ही आपको मुस्ततिर ज़मीर कहते हैं। ठीक है। और जो अलग से आते हैं, जो खुल के आते हैं, अकेले आते हैं, जैसा बताते थे यहाँ पे, ये जो हुआ ही या जब अकेले आते हैं ये, तो उसको बोलते हैं मुनफसिल ज़मीर। ये मुनफसिल, समझ में आया? जी। और अभी जैसा बताया था मैंने, किताबहू तो मुत्तसिल ज़मीर छिटक के आई हुई है। अब छिटक के आने वाले ज़मायर में जो है माजिद साहब, जी, 2 किस्म होते हैं। कोई एक वर्ब कुछ छिटक के आती है, और एक नाउन के गोद में बैठ के आती है। अच्छा। तो वर्ब के छिटक के आती नहीं, तो नाउन के गोद में बैठ के आती। हाँ,
अब अपन वर्ब के खाते पे बिठाएंगे उसको। पहले नाउन के पे तो आई थी ना भाई, नाउन के गोद में बैठ के आई थी, वो भी बता देता हूँ। तो ये नाउन के गोद में बैठ के आई वाली क्या है? किताबुहु। मुत्तसिल ज़माइर। भाई तो बड़ो मायने क्या है? बैतु हामिदिन, हामिद हामिद का घर। हामिद का घर। अब ये हामिद की जगह पे हम एक अटैच प्रोनाउन इसके गोद में बिठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? बैतुहु। ये पक्का कर लो, इसम के गोद में बैठ के आते हैं नो, और इनो होते हैं हालत जर में। क्यों होते हैं हालत जर में इनो? क्योंकि हामिदिन के जगह आए हुए हैं। हालत जर। अच्छा, ऐसा कई को होता बताऊंगा मैं, मालूम क्या? थोड़ी देर बाद बताऊं। राइट, चलो अब अपन वर्ब के साथ देखेंगे। ये हो गया दरबा। दरबा के मतलब बोलो, तीन जबर का मतलब उसने किया। जरा रुक जाओ, उसूल से चलो। तीन जबर बोले तो उसने किया। उसने क्या किया? उसने मारा। अब मार खाने वाला जो है हामिद है, तो कैसा लिखेंगे बोलो मेरे को, क्योंकि ये मफूल हो गया। हामिदन। अभी बताया ना मैंने, विलन जो है दो जबर से पहचाना जाता है, आवाज दन आती है, उसको नसब बोलते हैं। अब हामिदन आया ना माजिद साहब? जी जी। करने वाला कौन है? हुआ उसने मारा फाइल, फील, मफूल। अब ये हामिद को निकाल देंगे, घड़ी घड़ी हामिद बोलने के बजाय। अच्छा, सबसे पहले काम ये करो, आप सब लोगों ने अपना माइक बंद करो। कुछ बहुत सता रही है लोग। हाँ, देखिए, जरबा हामिदन, तो जरबा के अंदर कौन सी पीवी ज़मीर है? हुआ है ना। और कौन है? हो। तो ये जरबा वर्ब है। क्या है भाई? जरबा वर्ब है ना। वर्ब है। हाँ, तो ये वर्ब के शोल्डर पे बैठ के आने वाली जो है ना, कहाँ पे है? वर्ब के कहाँ बैठी है? ये शोल्डर पे। ये हु आया है क्योंकि हामिद कौन है? नसब में है। बोलो, हामिद नसब में है। तो ये हु भी नसब में है। सही है। तो ये जर्री बन गई, ये जर्री हालत बन गई, और ये नस्बी हालत बन गई। समझ में आया? तो अटैच प्रोनाउन दो किस्म के, बड़े बड़े मोटे पैमाने पे। क्या क्या भाई? इसम की गोद में और पेड़ के खाते पे। खलास। अब इसी को जरा बारीक पढ़ लेते हैं हम लोग रूलों के तहत। तो बोलो मुझे, अटैच प्रोनाउन दो कैसे कैसे आते हैं जंगली जबान में? बोलो। अटैच प्रोनाउन एक नाउन के साथ आते हैं, इसम के साथ आते। सात बात कुछ नहीं बोलने का मेरे को। नाउन के गोद में आते, बराबर। नाउन के गोद में और फाइल के शोल्डर पे और शोल्डर पे। ठीक है, पहले वाले नाउन के गोद में जो आई है वो जर्री हालत में है। वहां पे जो ओरिजिनल माल था वो जर्री था, हालत में है। यहाँ पे ओरिजिनल माल नसब था, इसलिए नस्बी हो गया। समझ में आ गई है? अब इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। माजिद, सब्जेक्ट की जगह पे जो आता है वो हुआ, हुमा, हुम आता है। ठीक है जी। ओके, अगर मैं बोलूं वो है एक मुसलमान, जरा वो अरबी पढ़िए। हुआ मुस्लिमुन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो जुमला है माजिद साहब, हुआ मुस्लिमुन, हाँ जी, आपके पास सब लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वो हुआ जो है, मैंने इसके पहले निशानदेही कहा था, जिससे जुमला इस्मिया शुरू होता है उसको मुब्तदा बोलते। बोलो क्या बोलते हैं? मुब्तदा। मुब्तदा। ठीक है।
اور اس کی اطلاع کیا دیے گئے ہم نے؟ کون ہے بھائی وہ آدمی؟ مسلمون سلمان اب اس کے اوپر کوئی اثر ہوا کیا اس کا؟ تو اس پہ ایکشن ورب ہے نہیں. نہیں برابر. ہاں بولو ہوا مسلمن. انگلش بولو. ہی کوئی ایک مسلمان نے بتایا تھا نا آپ کو جب بھی ہونا ہے نا. ہی از اے مسلم. مسلم. تو جب بھی ایسے سینٹینس بنیں گے ہی از اے مسلم, شی از اے مسلمہ, یو آر اے مسلم, تو یہ کام میں آئیں گے. کون آئیں گے بولو؟ یہ منفصل ضمائر مبتدا بنتے پورے. جی دیکھو کیا بنتے ہیں جملہ اسمیہ میں انہوں مبتدا بنتے ہیں. انگلش میں دیکھیے دوں میں آپ کو. جب کوئی بھی سینٹینس آپ ایگزسٹنس کا بنائیں گے, کیا کا بنائیں گے؟ ایگزسٹنس کا. ایگزسٹنس کا. تو اپنی انگلش میں بولیں گے ہی از مسلم. مسلم. تو ہی سیپریٹ لکھے نا ہم نے. آؤ ہاں تو اس سے چالو ہو رہا انہیں. تو ایسے چالو ہونے والے یہ سب ہے. ایک ایک کو کر کے دیکھیں گے. بولو ہوا مسلمن. بولو مسلم. ہما مسلمانی. ہما مسلمان ہم مسلمون. مسلمون ہیا مسلمتن. یا یا مسلمتون ہما مسلمتانی. ہننا مسلماتن. مرد سے بتاؤ انتا مسلمن. انتا مسلم انتما مسلمانی. انتا مسلمان انتم مسلمون. انتم مسلمون اب عورت ہے سامنے. انتی مسلمتن. انتی مسلمتون انتما مسلمتانی. انتما مسلمتان انتما مسلماتن. انتن مسلمات اب میں مرد ہوں تو بولو انا مسلمن. انا مسلمون اگر میں عورت ہے تو انا مسلمتن. انا مسلمتون اگر ہم جمع مرد ہے تو کیا بولیں گے؟ نحن مسلمون. نحن مسلمون عورت کے لیے کیا بولیں گے؟ نحن مسلمات. نحن مسلمات. آگے ایسے جملے بنانے کا سٹارٹر یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے جس کو ڈیٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. سمجھا کیا بھائی سب کو؟ یس جی سر. اچھا اس کے ایگزامپلس کے ساتھ فوٹو لے لیجیے. میں دے رہا ہوں ابھی آپ کو ایگزامپل کے ساتھ بنے ہوئے. جی سر. یہ دیکھو پڑھو. ہوا ایک منٹ. ہاں یہ دیکھو یہاں ہوا طالبن. ہوا طالب ہیا طالبتن. تو یہ پورے کے پورے کام ہے بگننگ میں آ رہے. اس کو مبتدا بولتے ہیں. سٹارٹ ہوتا ہے جملہ اسمیہ اسم سے. تو ان کا نام کیا دیں گے ماجد؟ بولو کون؟ جملہ جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ میں یہ تمام جو آ رہے ہیں ہوا ہیا ہما یہ سب آ رہے ہیں نا, ان کو بولتے ہیں سبجیکٹ پروناؤنس. سبجیکٹ عربی میں بولے تھے ابھی ایک نام. عربی میں بولے تو مبتدا. مبتدا وہ لکھ دو نا. ہاں مبتدا دیکھو مبتدا. مبتدا اور کیا بولیں گے اس کو مبتدا کے ساتھ؟ کیا بولیں گے؟ بولو منفصل ضمائر. منفصل کا مطلب کیا ہے بھائی؟ دیکھو انگلش میں لکھا ہے جملہ اس میں سبجیکٹ پروناؤن ڈیٹیچ الون یا ڈیٹیچڈ آنے والے ہمیشہ یہی کام کرتے, دوسرا کچھ کام نہیں کرتے. ہے سمجھ میں؟ یس. تو اپنے پاس پروناؤن کتنے ذرا گنو؟ 14. 14 تو ہے. 14 ہے. آؤ یہ 14 میں سے یہ ذات جو ہے جملہ اسمیہ کے اندر
सब्जेक्ट बनती है। बराबर, ठीक ठीक है भाई, हो पक्का याद हो गया। हो। अच्छा, एक उसूल लिखा रहा हूं मैं आपको, जरा लिखो उसूल। इसके बाद आपकी कभी गलती नहीं होती इंशाल्लाह। देखो बेफिक्र, इंशाल्लाह। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं मैं, जरा गौर करो, लिखो, समझो, संभाल के रखो, तो ये बुनियाद से चलने वाले हम। ये अब ग्रामेटिकल प्रिंसिपल बोल रहा हूं, ठीक है भाई जी। ग्रामर का एक उसूल बताने लगा हूं मैं आपको। हाँ, अब जरा यहां पे गौर करो, प्रोनाउन जो है ये दरअसल 5 किस्म के सबसे अहम प्रोनाउन है। पहला क्या बोला भाई? प्रोनाउन, बराबर, जो अभी देखिए तुमने, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुन्ना, हुन्ना, अंता, अंतुमा वगैरह, इनका ही नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल वैयक्तिक, वैयक्तिक, इनफरादी। बराबर, क्या बोलते हैं इसको? वैयक्तिक। पर्सनल इनफरादी प्रोनाउंस। हाँ, अब इसके बाद आते अपन जो सीख रहे हैं, वो जो बताए थे, इसम की गोद में बैठ के आते हैं, आते ना? हाँ, कौन कौन? इसम के गोद में आते, उमा, उमा, हुम, हा, उमा, शब्दों का लिखे ये जितने आते, का, कुमा, कुम, सी, कुमा, कुना, इनको पॉसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि अपने बोलते हामिद की किताब किधर, उसकी किताब। तो इसकी पहचान क्या है? इसम के गोदी में बैठकर आने वाले, पॉसेसिव। ठीक है, क्या है ये? पॉसेसिव प्रोनाउन है। और क्या लेके आते हैं नो? जर, जर लेके आते हैं। हालत जर्री। जर में। हाँ। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मुझे यूं बताना है, ये है एक कलम, बोलो ये है एक ये कलम, है एक कलम। आजा, इशारे से बोलते हैं, दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन, पेन। अब मैंने दूर कर दिया इसको, बोलो दैट इज अ पेन। दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन। नजदीक है तो हाजा कलम, हाजा कलमुन। दूर करो, जालिका कलम। अच्छा, आजा कलमुन, जालिका कलमुन, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। करेक्ट। दर्शन देनारे सर्वनाम, दर्शक सर्वनाम। दर्शक। अच्छा, अच्छा, ये इंटरोगेटिव अपन सीखे तो माँ वगैरह अभी छोड़ो इसको, ये लो रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव। हाँ, तो मैंने कहा ये है लंबा लड़का, ये है क्या बोला मैंने? ये है लंबा लड़का, लंबा लड़का। इशारा नहीं करा, हुआ, बोलो हुआ, हुआ गालिबुन, गालिबुन, तालिबुन। तवीलुन, तवीलुन। जी, बोलो हुआ, हुआ गालिबुन, गालिबुन, तवीलुन, तबीलुन, बोला ना? औ तो आपको तो समझ में नहीं आया सर, 25 बच्चों में से किसको बोल रहे, तुम इशारा क्यों नहीं कर रहे? हुआ, गालिबुन, तवीलुन, इंग्लिश बोलेंगे, ही इज अ टॉल बॉय। बराबर, तो भाई लोगों को समझेगा क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, समझ रहा क्या? नहीं, नहीं। आओ आप देखो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, ये बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैंने अब इंग्लिश बदल दिया, उर्दू बदल दिया। ही इज अ टॉल बॉय, बोलो सब लोग। he is a tall boy, टॉल बॉय। Who is in a black dress? Who in a black dress? who is in a black जो Who है is in a black काले dress? कपड़ों में, आप पहचान में गया? जी हाँ, करेक्ट। पहले वाला जो बात कर रहा था ना, मोघम था वो, अब क्लियर होगा आपको। फ्रेज और tall boy who सेंटेंस। is in a black dress, जो हु लगाया ना मैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, अल्लज़ी लगाया मैंने। बोलो हुआ तालिबुल लज़ी
हुआ हुआ तालिब लजी अल्लाह बोल दो जो है जो हाँ बैठ जाओ। तो ऐसे जो 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 जिन्होंने जिसको जिसका उसका अल्लज़ी खलक़ल मौता जिसने बनाया मौत को हयात को बनाया लजी आया समझ में। अल्लज़ी बोलो तो एक अल्लज़ीना बोलो जिन्होंने अल्लज़ीना आमनु जिन्होंने ईमान लाया हाँ जी अल्लाह से आया समझ में। तो ऐसे कहाँ पे आएंगे भैया रिलेटिव प्रोनाउन में बोलो। रिलेटिव प्रोनाउंस अभी खाली मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ पढ़ा रहा नहीं। जी प्रोनाउन की इतनी शक्लें पढ़ने वाले हम सब पढ़ गए इंशाअल्लाह बहुत डिटेल में और उसके मास्टर बने। जिसको प्रोनाउन आते हैं उसको जबान आती इंशाअल्लाह आया समझ में? अल्लाह अब बोलो वो है हमारा टीचर बोलो ही इज इज our our teacher. teacher। अब लोग क्या मालूम कौन है बोलो ही इज आवर टीचर हु इज बॉल्ड बोलो अच्छा अच्छा वो है हमारा He is our टीचर teacher. जो है टकला जो है ओपन टॉप। समझ में आई क्या बात। Yes. हाँ तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है Relate जो कर- बात अंधेरे में है उसको क्लैरिटी लाके बताता है। रहता है इस समझ में आई बात। relate अब छोड़ दो उसको फिर इनको भूल जाओ। अब मैं जो रूल लिखा के देने वाला था वो लिखो। ये तमाम प्रोनाउंस बोलो जी। ये तमाम तमाम प्रोनाउन सबसे पहला वर्ड लिख रहा हूं मैं। ये तमाम प्रोनाउंस पैदाइशी मारिफा होते हैं। क्या होते हैं माई ये मैंने नहीं बनाया अरब ने बनाया ठीक है। जी जी मारिफा क्या होते हैं मारिफा मारिफा मारिफा। समझ में आ रहा है सबको। जी सर इनको भले ही हल लगा हुआ नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन आप बोलना मारिफा है। बराबर क्यों नहीं बराबर समझा फायदा हुआ बनी ना मुसलमान तो उसको बोलने को रहेगा मुसलमान बोलते सही हाँ बोलो मारिफा ये मारिफा मारिफा है जहां तक पक्का समझ लिए सबसे। दूसरी चीज बोलो इन पूरे प्रोनाउन का क्या नहीं होता खुद का इराब नहीं होता एच रहता इराब नहीं रहता इनका। इन पे जबर रहो पेश रहो कुछ भी रहे है चल बोल चल कुछ भी नहीं तेरे को। वो किसकी जगह पे बैठा वो देखकर हिसाब लगाना पड़ता। जी बात समझे। जी जैसा किताब हु बोले अपन तो हु का क्या है रब जेर है क्यों भाई किताब हामिदिन था हामिद के नीचे जेर आता ना। हाँ आ गया समझ में सबको। और अगर अपने बोले जरा बा हो उसने मारा उसको अब हु मार खाए वाला है ना। मैंने क्या बोला विलन मार खाने वाले के पास एक जबर या दो जबर रहता तो बोलो नस्बी है वो। अच्छा ऐसा क्यों है अरे भाई कोई पूछे नहीं मेरे को बोलो ना ऐसा क्यों और ऐसा। क्योंकि उन्हें वर्ब के शोल्डर पे बैठ गया हाँ बेटा वो तो सही हो गया लेकिन और भी बातें मालूम होना चाहिए अपने को मालूम। सही तो वो कौन सी बातें मैं लिखा रहा हूं मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि हाफिज साहब आपको आगे पढ़ाने में आपको कल आपके सवाल थे ना वो बता रहा हूं। सही पहली चीज देखो इस्म बोलो। इसम इस्म को तीन एराबी हालत हो सकता है वो एक नाउन है वो है ये ओरिजिनल शक्ल है नाम की बोलो क्या है बराबर बाय डिफॉल्ट क्या बोलो मोहम्मदुल रफा 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 है ये। रफा 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 ये जब हीरो बनेगा ये नाम तो मोहम्मद की शक्ल में आएगा और जब ये विलन बन जाएगा तो किस शक्ल में आएगा मोहम्मदन नसब हालत नसब नस्ब में आएगा। और ये जब बनेगा किसी भी इस्म का मुजाफ इलैह तो क्या हालत में आएगा किताबु पढ़ो अबू मोहम्मद
मोहम्मदिन मोहम्मदिन दिन दिन देर में अच्छा हालत जर अच्छा माजिद साहब मेरे साथ जरा गाना गाओ इसकी आवाज निकालो दुन दुन इसकी आवाज निकालो दन दन इसकी आवाज दिन निकालो दुन दुन यानी दिन रफा रफा दन यानी नसब नसब नस्ब और दिन यानी जर जरा इंग्लिश गाना सीखो में से इफ आई से दुन इट इज रफा इफ आई से ऐसे दन दिन रफा it is ऐसे nasab. If I say din, दिन it is jar. So dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din. Dun is rafa, dun is nasab, din is jar. दिन जर दन नसब दन रफा फिर से कहो मेरे साथ. If I say dun, if I say dun दिन it is rafa. is it is rafa रफा If I say dan, if I say I dan say it dan is nasab. it's nasab If I say din, if I say din it is jar. it is jar So dun dun dan dan din din. दिन समझ में आया तो जी सर। कोई भी इसम जो है आएगा ना एक पेश या दो पेश लेकर आएगा एक पेश आएगा तो दो हो जाएगा एक जबर है तो दा हो जाएगा एक जर है तो दिए हो जाएगा और क्या होगा सो ये है नॉर्मल इसम की पहचान बोलो जी और नॉर्मल इसम की पहचान लेकिन कुछ इसम ऐसे होते हैं जो ये दो शक्लों में तब्दील नहीं हो तीन में नहीं होते हैं और ऐसे जो कन्वर्ट होते हैं माजिद साहब इनका नाम है तीन बोले तो क्या है आलम ट्राई ट्रिप्टो बोलो ट्रिप्टोट ट्रिप्टोल ट्रिप्टो यानी इन्हों झुकते हैं डिक्लाइन होते हैं तीन शक्लों में दो पेशे दो जबर होते हैं और दो जेर होते हैं दुन धन दिन होते हैं तो इसको ट्रिप्टोट कहते हैं क्या बोलते हैं ट्रिप्टोट अब कुछ ऐसे नाउन है इसके अलावा जो दो ही शक्लों में तब्दील होते हैं कितने शक्लों में तब्दील होते हैं दो ही शक्लों में अभी मैं ज्यादा डिटेल में जाता नहीं मैं खाली इंग्लिश में लिख देता आपको देखो एक नाम को आपने कुरान में पढ़े होंगे जो बहुत कॉमन है हमारे दादों को आए और इब्राहिम इब्राहिम कुरान में इब्राहिम को आप पढ़े होंगे इब्राहिम आता है और इब्राहिम दो ही तरीके से आता है एक पेश और एक जबर से आता है इब्राहिम ही नहीं आता तो इब्राहिमा जो है दो काम करता है ये नसब भी आता है यही जर आता है अब बोलो इब्राहिम की किताब बोलो किताबो किताबो इब्राहिम तो ये जब दो ही जगह पे चेंज होते हैं तो इनका नाम है माजिद आइसोटोप के जैसा डिप्टोट अच्छा डिप्टोट वो ट्रिप्टोट डिप्टोट यहां तक सबको समझा यस तीन जगह में झुकता है दुन दन दिन ट्रिप्टोट दो ही जगह झुकता दुन और दन दा और दी देखो दो और दा इब्राहिमो इब्राहिमा आदमो आदमा कोई शुक्र का हाँ इसको क्या बोलते हैं डिप्टोट अच्छा एक और क्या होता है मालूम माजिद साहब एक ऐसा नाम होता है जैसा आपने एक मुर्गी लाए छिल दिए डीप फ्रीजर में रख दिए -40 डिग्री पे रखे हाँ एक महीने के बाद निकाले क्या निकलेगा कड़क पत्थर मुर्गी रहेंगी ना लेकिन मुर्गी रहेंगी फिक्स हालत में उन्हें निकलता नहीं चेंज नहीं होता बराबर हाँ तो एक नाम मैं अपने सामने लिख रहा कुरान में चेक करो आप जाके वो नाम है क्या है मूसा
अब मूसा का मूसू नहीं होता, मूसी नहीं होता है, मूसा ही रहता है तीनों भी हालतों में। रफा में मूसा, अच्छा अच्छा अच्छा, जफर means नसब में मूसा और जर में मूसा। बराबर। इसका नाम है, हाँ देखो लिखो, मबनी, बोलो मबनी, right. हाँ, नो चेंजेस, नो चेंज। फिक्स्ड, फिक्स्ड। सर उर्दू अब में एक आदमी रहता, देखो उन्हें बहुत खुश है कभी ना, बहुत गम में बेतो, बहुत दुख में बेतो, बदलता ही नहीं। बराबर। अब मबनी, माजिद क्या करता है, शादी में गया तो भी लुंगी पहन के जाता, घर में रहा तो भी लुंगी में, नदी के किनारे गया तो लुंगी में, एक ही हालत में। सही है, सही। तो क्या बोलेंगे उसको, माजिद है मबनी, बोलो। माजिद है मबनी। तो भैया ये पूरे प्रोनाउन मबनी है, लुंगी वाले सारे सब, मबनी। उन्हें बदलती नहीं। उनकी हालत को समझने के लिए एस्टिमेशन करना पड़ता। आज इतना बस करेंगे और मंडे के दिन से ऐसा डिटेल पढ़ेंगे ताकि आप इंशाअल्लाह स्कॉलर कहलाएंगे अरबी। इंशाअल्लाह। लेकिन मैंने जो लिखा, इसके वीडियो को देखो, लिखो, नोट्स बनाओ। ये आपको ये जबान में, इतनी थर्ड क्लास जबान में कोई नहीं सिखाएगा। सही है, सही। जी जज़ाकल्लाह। सर हमको डबल से समझने के लिए रिकॉर्डिंग मिली है ना? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोर्ड पे जो अल्फाज लिखे गए वो एक जुमला है जिसके अंदर से हमने हर एक लफ्ज को अलग अलग किए थे। सबसे पहला है रब्बना, दूसरा है लका और उसके बाद है अल्हम्दु। रब्बना को अगर अलग किए तो वहां से दो अल्फाज मिले, रब्बा और उसके बाद है नून अलिफ जबर ना। लका के अंदर भी दो है, लाम जबर ला और फिर काफ जबर का। और अल्हम्दु एक मुफरद लफ्ज है। और अल्हम्दु का DING अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये मारिफा है क्योंकि शुरुआत में अलिफ लाम है। उसके बाद एराबी एतबार से ये हालत रफा है और जिन्स के एतबार से मुजक्कर है, अदद के एतबार से ये वाहिद है। तो ये हो गया अल्हम्दु। और हम अगर वापस चलेंगे रब्बना लका, तो रब्बना से पहले लाम जबर ला और काफ जबर का की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो अल्फाज है, दो लफ्ज है, जिसमें पहला लफ्ज हर्फ है यानी कि पार्टिकल से, लाम जबर ला या लाम जेर ली। और ये हर्फ है, ये हर्फे जर है, इसका नाम है हर्फे जर। ये अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में लेके जाता। तो इसके बाद जो इस्म आया वो काफ जबर का है। अब काफ जबर का जो इस्म आया वो इस्म के अंदर मारिफा इस्म है और प्रोनाउन है यानी कि जमीर है। और जमीर जो किसी के साथ आई तो वो उसके पहले वाला हर्फ है, हर्फ के साथ अटैच होके आई। और हर्फ कौन सा है, वो हर्फ जर है। तो इस वजह से इस जमीर की एराबी हालत जर हो जाएंगी। लाम जेर ली ने इसकी एराब चेंज करके
हालत जर कर दिया तो दोनों मिलके एक मुरक्कब बन गया। पहला है हरफ जर और दूसरा है इसमें मजरूर। हरफ जर और इसमें मजरूर दोनों मिलके एक मुरक्कब बनता और उस मुरक्कब का नाम है मुरक्कब जारी। ये दोनों मिलके एक मुरक्कब है और मुरक्कब का नाम है मुरक्कब जारी। तो लका, लाम जबर ला और काफ जबर का, लका यानी कि अब दोनों मिलके एक मुरक्कब बन गया, दोनों अल्फाज मिलके कंबाइन हो गए, एक यूनिट हो गए। तो अब ये दो अल्फाज नहीं कहलाएंगे बल्कि एक मुरक्कब कहलाएंगा। तो इस मुरक्कब का नाम है मुरक्कब जारी। और इस दो अल्फाजों के नाम है, इन दो अल्फाजों के मायने है लका यानी कि तेरे लिए, लका यानी कि तेरे लिए। अगर यहां पे हु आता तो लहू होता तो क्या होता, उसके लिए। हाँ, अगर हा आता तो उस मोहन्नस के लिए, उस औरत के लिए। लका तेरे लिए, फॉर यू। हाँ, और लकी अगर आता तो मोनस फेमिनाइन के लिए, औरत के लिए, मोहन्नस के लिए, तेरे लिए। लाना बोले और हाँ, नून अलिफ जबर ना आता, लना जब बनता तो वो होता हमारे लिए। और अगर लाम जेर ली के साथ ई लगता, ली होता, लाम या जेर ली, तो मेरे लिए होता। तो ये अल्फाज बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल हुए, इनको याद रखिए। लाम के साथ अगर हु आया, लहू हुआ तो उसके लिए। और लहू का लफ्ज बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल हुआ अल्लाह ताला के लिए। अल्लाहु लहू माफिस समावात, लहू मुल्क समावात, बहुत सारे जगहों पे अल्लाह ताला के लिए लहू का हा पेश हु का इस्तेमाल हुआ, वो अटैच प्रोनाउन लगी लाम जबर ला के साथ। तो लहू के मायने हैं उसके लिए, लहा के मायने हैं उस मोहन्नस के लिए, लका के मायने हैं तेरे लिए, लकी औरत की तरफ इशारा करके तेरे लिए, ए औरत तेरे लिए, ली मेरे लिए, लना हमारे लिए, हमारे लिए। तो लहू उसके लिए या उसका, लहा उस औरत के लिए या उसका, लका तेरे लिए या तेरा, लकी औरत की तरफ तेरे लिए या तेरा, ली मेरे लिए या मेरा, लना हमारे लिए या हमारा। ये दो भी मायने इसके होते। तो यहां पे है लका यानी कि तेरे लिए, तेरा। उसके बाद है अल्हम्दु। अब अल्हम्दु हमने सूरह फातिहा के शुरू की आयत में हमने देखे, अल्हम्दु के मायने क्या है, तमाम तारीफें, तमाम तारीफें। अब जुमले की तरतीब के एतबार से अगर हम देखेंगे तो यहां पे है लका, अल्हम्दु तेरे लिए, तेरे लिए है तमाम तारीफें। हाँ, और अगर इसको उल्टा पढ़ेंगे तो तमाम तारीफें तेरे लिए है। ये जो लाम जबर ला नजर आ रहा है ये हरफे जर है, ये बाज मर्तबा लाम जेर ली है, असल ओरिजिनल ये है लाम जेर ली, लेकिन पढ़ने में आसानी के लिए उसके ऊपर जबर दे के पढ़ा जाता तो लाम जबर ला भी आता। असल ओरिजिनल क्या है, हरफे जर लाम जेर ली। तो सूरह फातिहा के अगर अंदर हम देखेंगे पहली आयत में तो वहां पे दो अल्फाज है, एक तो है अल्हम्दु, शुरुआत वहां से हो रही, और फिर लिल्लाही, लिल्लाही। यहाँ लिया है। तो इसके मायने क्या है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। तो ये लाम ज़ेर ली इशारा कर रहा है कि लिए, फॉर किसके लिए है। तो यहां पे अल्लाह ही लफ्ज जलाला हालत जर में आया क्योंकि लाम ज़ेर ली की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और यही लिल्लाही को अल्हम्दु से पहले अगर लगा दिए तो वो बन जाता लिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दु लिल्लाही और लिल्लाहिल हम्दु, इसके मायने हैं तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है या तमाम तारीफें है अल्लाह के लिए। और लिल्लाहिल हम्द खाली इनकी पोजीशन चेंज करे, लिल्लाही को पहले ला लिए, अल्हम्दु को बाद में ला लिए, तो लिल्लाहिल हम्द। अब इसके मायने के अंदर चेंजेस आ जाता, अल्लाह के लिए ही है तमाम तारीफें, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें हैं अल्लाह के लिए, लिल्लाहिल हम्द
اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں. جملے میں زور پیدا ہو گیا، تاکید آ گئی. یہاں پہ اللہ کے لیے ہے، یہاں پہ اللہ ہی کے لیے ہے، خاص ہو گیا، مختص ہو گیا، اللہ ہی کے لیے ہے. تو اسی طریقے سے اب یہ لام زیر لی کے ساتھ اللہ ہی آیا. اگر یہاں پہ اس کا اٹیچ پروناؤن اگر استعمال کریں گے تو ہو آتا بعض مرتبہ غائب میں ہے تو، اور اگر حاضر کے لیے بتانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے ہم بتا رہے، تو تب کیا استعمال ہوگا ہو کی جگہ؟ کاف زبر کا. تو یہ لی ہو جائے گا لا، لکا، لکل حمد. اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں. یہاں پہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم بتا رہے، یہاں پہ ہے لکل حمد، تیرے لیے ہی ہے تمام تعریفیں. اور یہی لکل حمد یہاں پہ استعمال ہوا، لکل حمد، تیرے لیے ہی ہے تمام کی تمام تعریفیں. یہ ہے یہ دو الفاظ کے معنی. اونلی فار یو، اونلی فار یو. اس کے بعد پھر پہلا لفظ ہے ربنا. اب ربنا کے بارے میں کل ہم نے دیکھے، پہلا ہے رب اور دوسرا ہے نون الف زبر نا. تو یہ نون الف زبر نا یہ ایک پروناؤن ہے، اور پروناؤن کی دو قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ منفصل ہے یا متصل ہے؟ اٹیچ ہے یا ڈیٹیچ ہے؟ اٹیچ. اٹیچ پروناؤن ہے. اور اٹیچ پروناؤن ہے تو کس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ وہ فعل کے ساتھ ہے، اسم کے ساتھ ہے، یا حرف کے ساتھ ہے؟ اسم کے اسم کے ساتھ اٹیچ ہے. اور جب بھی پروناؤن اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی؟ جری. جری. حالت جر. تو یہاں پہ نون الف زبر نا کی اعرابی حالت ہے حالت جر. جر. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کے آیا. تو اب ربا یہ اسم ہے اور نون الف زبر نا یہ اٹیچ ہوا اسم کے ساتھ. اب جب اسم کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو یہ ایک مرکب بن گیا. اور مرکب کون سا بنا؟ اضافی. مرکب اضافی، مالک اور ملکیت کا رشتہ بنانے والا مرکب اضافی. اور مرکب اضافی کے اندر کا، کی، کے ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا کیونکہ ملکیت بتانا پڑتا. اب یہاں پہ ہے ربنا یعنی کہ ہمارا رب، ہمارا رب. اب یہ تو ہو گئے اس کے اورل معنی سمجھو، پورے الفاظ کے پورے اس مرکب کے معنی ہم نے سرسری طور پہ نکال دیے کہ ہمارا رب. لیکن پہلا جو لفظ نظر آ رہا ربا، اب یہ جو رب ہے یہ بھی اسم ہے. اب یہاں پہ اسم کی اعرابی حالت کیا ہے ہم کو ڈھونڈنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے. رب کی اعرابی حالت نصب. نصب ہے، اور بائی ڈیفالٹ کوئی بھی اسم حالت رفع ہوتا. برابر. نصب اور جر میں آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی، کوئی ریزن رہتا اس کی حالت نصب اور جر میں آنے کی. اگر پہلے حرف جر آیا یا کچھ اور آیا تو پھر وہ جر میں جاتا، اگر ان آ گیا تو حالت نصب میں جاتا. لیکن یہاں پہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے والا حرف یا اسم نہیں ہے، تو اس کی اعرابی حالت حالت نصب کیوں ہوئی یہ ہم کو دیکھنا ہے. اوریجنل یہ ہے ربنا، یعنی کہ منادا بنا کے ربنا ہمارا رب، ہاں یہ ہے اوریجنل بائی ڈیفالٹ اگر رب کی اعرابی حالت ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ ہے ربنا، اے ہمارے رب. اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ حالت نصب ہے. تو اس کو سمجھنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن نشین کرنا ہے، ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ مرکب اضافی، یہ جو ربنا بنا یہ پوزیسو فریز ہے، ایکسٹینشن فریز ہے، مرکب اضافی ہے. تو مرکب اضافی دو الفاظ سے مل کے بنتا، یعنی کہ دو ناؤن ہونا اس سے مل کے بنتا. جیسا یہاں پہ بنا ربا، ربو اور نون الف زبر نا. اب جب یہ دونوں مل گئے آپس میں مرکب بن گئے
تو اب یہ دونوں الگ الگ نہیں کہے جائیں گے, یہ دونوں ایک یونٹ ہو گئے. یہ دونوں کیا ہو گئے؟ ایک یونٹ ہو گئے, ان کا رشتہ قائم ہو گیا. اب ان دونوں کو ہم الگ الگ نہیں بولیں گے بلکہ یہ ایک ہی ہے, یہ ایک ہی ناؤن ہے. مرکب اضافی ایک مرکب ہے, لیکن مرکب اضافی رہو یا پھر کوئی بھی رہو, اسم کی اعرابی حالت چینج ہوتی, حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر. تو یہ جو دونوں کا آپس میں ایک ساتھ ملنا, ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ طے ہوا کہ مرکب اضافی کے جو دو جز ہے, پہلا اور دوسرا, پہلے والے کو بولیں گے مضاف اور دوسرے والے کو بولیں گے مضاف الیہ. تو مضاف کی اعرابی حالت تبدیل ہو سکتی. مضاف کبھی رفع میں آ سکتا, کبھی نصب میں آ سکتا, اور کبھی جر میں آ سکتا, لیکن مضاف الیہ ہمیشہ ہمیشہ حالت جر میں رہے گا, جر میں رہے گا. اور کوئی بھی آنے دو, ان کے پہلے کوئی بھی حرف عامل ہو یا پھر جملہ فعلیہ ہو یا انا ہو, کوئی بھی رہنے دو, اس کا جو عمل ہوگا وہ مضاف کے اوپر ہوگا, پہلے والے اسم کے اوپر ہوگا. تو اب یہاں پہ ہے ربنا, تو پہلے والا اسم کی اعرابی حالت تبدیل ہونا ہے, تو یہ تبدیل ہو کے یہاں پہ بنا ربنا. ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ ربنا کیسا بنا. تو یہ ربنا دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے اصل میں ایک حرف چھپا ہوا ہے, یہ مرکب کے پیچھے ایک حرف چھپے والا ہے. اچھا, اس کے ربنا کے معنی کیا بولتے ہم لوگ ہمیشہ؟ اے ہمارے رب, ربنا آتینا فی الدنیا, اے ہمارے رب تو دے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی. اسی طریقے سے بہت سارے ربنا ہب لنا من ازواجنا, تو اس کے معنی ہوتے اے ہمارے رب. یہ اے کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو اصل میں اس کے پیچھے ایک حرف چھپا ہوا ہے, اور وہ حرف ہے حرف ندا, یا کے معنی ہے اے, اور یہ ہے اصل میں ربنا, یا ربنا. یا ایک حرف آیا تو یہ حرف سے ہم کو سوال کرنا ہے کہ یہ عامل ہے کیا غیر عامل ہے؟ عامل ہے. یہ یا حرف ندا کیا عمل کرتا؟ نصب میں لے جاتا نہیں, اس کے بعد آنے والے اسم کو اخف کر دیتا. اخف کرتا یعنی کہ ہلکا کر دیتا, اس کے اوپر سے الف لام اور تنوین دونوں بھی ہٹا دیتا, تو اس کو اخف کر دیتا. اخف کیا ہوا اسم قرآن کے اندر 3 جگہ استعمال ہوا, ہم نے سیکھے. پہلا استعمال ہوتا مضاف بنتا مرکب اضافی میں, دوسرا بنتا حرف ندا کا منادا جس کو پکارا گیا, وہ بھی اخف کیا ہوا رہتا. تیسرا لا نفی جنس کا اسم بنتا. تو یہاں پہ یا جو عمل کرتا اپنے بعد آنے والے اسم کو اخف کر دیتا. اب یہ ربنا کو اگر ہم دیکھیں گے تو ربنا آلریڈی پہلے سے اخف کیا ہوا ہے. ہمارا رب اگر بنانا ہے تو پہلے سے اخف کیا ہوا ہے, تو اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہو رہا, پہلے سے اخف کیا ہوا ہے, اس وجہ سے اس کا عمل ضائع ہو جا رہا. تو اس کا عمل ضائع نہیں ہونے کی وجہ سے یہ یا ایک اور عمل کر دیتا. یہ جو رب مضاف ہے اس کو اعرابی حالت رفع سے بدل کے حالت نصب کر دیتا, کیونکہ پہلے سے انہیں اخف کیا ہوا ہے. تو اب اس کا عمل ہے کہ اخف کرنا, لیکن یہاں پہ پہلے سے اخف کیا ہوا ہے, اس وجہ سے انہیں کیا کر دیتا, اس کو حالت رفع سے نصب میں لے کے چلے جاتا. اور یہی حالت نصب نشانی ہے اے کی, یا کی. جیسا ہم نے بہت سارے لوگوں کو سننے, یا عربوں کو اگر کسی نے سنے ہوں گے, کسی کا نام رہتا عبداللہ, عبداللہی, یا پھر عبد الرحمانی. عبداللہی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. عبد الرحمان کے معنی رحمان کا بندہ. لیکن عربوں کو تو چھوڑو, آپ نے چاؤشوں کو اگر دیکھے ہوں گے نام بولتے ہوئے تو وہ کیا بولتے؟ عبداللہ, عبداللہ بولتے, اور عبد الرحمان بولتے. کیوں؟ اس کو پکار رہے. عبداللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ,
معنی کے اعتبار سے. اور اگر انہوں جیسا پکار رہے عبداللہ تو اے اللہ کے بندے ہاں ہاں بلا رہے ہو. بلا رہے انہوں تو اس کو آواز لگا رہے. تو آواز لگانے کے لیے پکارنے کے لیے حرف ندا ہے یا, اور یا عمل کرتا اپنے بعد آنے والے منادا کو اخف کرتا. تو پہلے سے جو اسم اخف کیا ہوا رہتا تو اس کو انہیں کیا کرتا, اعرابی اعتبار سے حالت تبدیل کر کے نصب کر دیتا. تو جب اس کے پہلے یا لگیں گا تو یہ عبداللہ سے بنے گا عبداللہ. عبداللہ. یہاں پہ جب یا لگیں گا تو عبد الرحمن سے بنے گا عبد الرحمانی. اب یہ عبداللہ اور عبد الرحمن حالت نصب میں آ گئے. تو جب انہیں حالت نصب میں آ گیا تو یہ یا کی کبھی کبھی ضرورت نہیں بھی پڑے تو چلتا, نہیں بھی لگائے تو یا چل جاتا. سمجھ میں آ جاتا کہ یہ پکارا جا رہا. عبداللہ بول دیے تو کہ اے عبداللہ, اے اللہ کے بندے. عبد الرحمن اے رحمان کے بندے, پکارا جا رہا. اسی طریقے سے ربنا اے ہمارے رب, یا ربنا اے ہمارے رب. یا نکال بھی دیے تو چلتا ربنا. ربنا اے ہمارے رب. تو یہی ہے ربنا کے پیچھے ایک حرف چھپا ہوا اور یہ اس کا گرامر. تو ہمارا جو جملہ ہے ربنا لکل حمد, اب اس کے معنی آپ لوگ بتائیے. اے ہمارے رب ساری تعریف تیری ہے. اے ہمارا ہاں تیری ہے تمام تعریفیں. تیرے لیے ہی ہے تمام تعریفیں. حمد. ہاں تیرے لیے ہی ہے تمام تعریفیں. تو اللہ اکبر کہے, نماز شروع ہوئی. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ, وہ بھی حمدی کا تیری تعریف کے ساتھ, وہ تبارک اسمک کا, اور بہت بابرکت ہے تیرا نام, برکت والا ہے, برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی جدو کا, بہت بلند ہے تیرا مرتبہ. ولا الہ غیرک, اور نہیں ہے کوئی تیرے سوا عبادت کے لائق. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ پڑھنا کیونکہ کلام اللہ کا کلام پڑھا جا رہا وہاں پہ. پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. پھر تمام تعریفیں الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین, تمام تعریفیں بڑا مہربان رحم کرنے والا بدلے کے دن کا مالک اللہ کے لیے ہے. شروع سے لے کے تعریف ہی تعریف, تعریف ہی تعریف. کس کی تعریف؟ ہمارے رب کی تعریف, اللہ کی تعریف. پھر کوئی ایک سورہ پڑھ لیے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم, اس کا بھی ہم آگے انشاءاللہ آگے کی کلاس میں اجرا کریں گے. پھر رکوع سے اٹھے, اللہ تعالیٰ ہم سے ہی بولنے لگا رہے سمیع اللہ لمن حمیدہ, سن لیا اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کیا. ہم نے تعریف کیے, اللہ تعالیٰ خود جواب دینے کے بجائے ہم سے ہی اس کا جواب دینے لگا دے رہے کہ میں نے سن لیا, تو تیری زبان سے اقرار کر لے. سن لیا اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کیا. اور پھر وہی جواب میں ہم ربنا لک الحمد, اے ہمارے رب تیرے لیے ہی ہے تمام تعریفیں. اور اگر اس کے بعد کی تسبیح اگر کسی کو پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. پھر اللہ اکبر سجدے کی طرف جائے. تعریف ہی تعریف, شروع سے لے کے آخر تک تعریف. تو یہ ہے وہ دعائیں, وہی تسبیحات جو ہم نمازوں میں استعمال کرتے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ گرامر کے ساتھ الحمدللہ جو بھی گرامر ہم نے سیکھے اس کا استعمال کر کے یہ دعاؤں کا ہم اجرا کر رہے, اس کے معنی بھی دیکھ رہے. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو سمجھ میں آئے, اور اس کو روزانہ نمازوں میں ہماری اس کا استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. اسی انداز سے ہمارے رب کے سامنے ہم کو پیش ہونا ہے. اس کے طریقے سے جیسا ایک اوریجنل عربی بھی اس طریقے سے عبادت نہیں کرتا, اسی طریقے سے ہم کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ کے ہمارے رب کے سامنے ہم کھڑے رہ کے ایسے الفاظ کا استعمال کریں گے. اور ان الفاظ کے اندر وہی خلوص, ترجمہ ہم کو معلوم ہے, گرامر ہم کو معلوم ہے, ہمارے اندر صرف وہ تڑپ اور کوڑھن لانا ہے کہ اے اللہ تو ہے, کوئی نہیں ہے تیرے سوا, تمام تعریفیں تیری, بادشاہت تیری, تو پیدا کرنے والا, تو مارنے والا, تو روزی دینے والا, سب کچھ تو کرنے والا. ہمارے بیڑا پار کرا دے, ہم کو کامیاب کر دے دنیا اور آخرت میں. آمین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب
کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کا صحیح علم ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم فقینا فی الدین وعلمنا التاویل۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آمین 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 آمین۔ تو کل ہفتہ اور اتوار 2 دن کلاس کو چھٹی ہے، 2 دن آپ لوگ جو بھی ہم نے پچھلا پڑھے ہوئے اس کی پریکٹس کیجئے، اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ بہت سارے گرامر کے اصول ہم نے سیکھے۔ تو میں چاہوں گا، میں آپ لوگوں کو ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی گرامر ہم نے سیکھے آپ اس کا استعمال کیجئے ہماری روزمرہ کی دعاؤں میں۔ جی روزانہ صبح شام جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نماز کے اندر یا پھر نماز کے علاوہ، اور تسبیحات ہم پڑھتے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سو کر اٹھنے کی دعا ہے، سوتے وقت کی دعا ہے، کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، مرد حضرات مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، توکلت فعل ماضی، میں نے بھروسہ کیا، تو بولے تو میں، علی اللہ اللہ پر، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، توکلت علی اللہ میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، گھر سے نکلتے وقت دعا کی۔ جی تو ترجمہ معلوم رہے گا تو ہر جگہ اس کا استعمال ہوگا، اور گرامر بھی ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ، اللہ آ گیا، اللہ ہی آ گیا، آواز سننے میں آ رہی تو اللہ ہی حالت جر میں ہے، اور اس کے پہلے اللہ آ گیا تو لفظ جلالہ حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پہلے اللہ آ گیا، وہ حرف جر آ گیا، تو حرف جر اور اس میں مجرور دونوں مل کے ایک مرکب بن گیا، اور اس مرکب کا نام ہے مرکب جاری، اللہ۔ توکلت فعل ہو گیا، اس کا فاعل توکلت تو بولے تو میں، اس کا فاعل انا ہو گیا۔ پھر بسم اللہ، بازر بھی آیا، اسم آیا، اللہ ہی آیا، بازر بھی حرف جر ہے، اور اسمی اخف کیا ہوا اسم ہے، حالت جر میں ہے، کیوں ہے؟ بازر بھی کی وجہ سے، تو بازر بھی اور اسمی مل کے ایک مرکب بن گیا، مرکب جاری۔ پھر اسم اللہ، اسم حالت جر میں ہے لیکن اخف کیا ہوا ہے، اور اخف کیا ہوا ہے تو مالک ملکیت بننے کے قابل ہے، اس کے بعد مالک دیکھو اللہ ہی حالت جر میں ہے، تو بسم اللہ بازر بھی اور اسمی دو مل کے ایک مرکب، اسم اللہ یہ دونوں مل کے مرکب، اللہ کا نام، بازر بھی اللہ کے نام کے ساتھ، ڈبے میں ڈبہ۔ یہ گرامر، یہ ڈیلی دعا ہے، ہم پڑھتے اور اس کو ریپیٹ کرتے رہو، اس کے اندر گرامر ڈھونڈتے رہو کہ ہم نے جو پڑھے وہ ہے کیا اس کے اندر۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، تو گرامر کا استعمال آپ ان چیزوں میں کوشش کیجئے کرنے کی۔ اگر زبانی نہیں آتا تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دیا، انٹرنیٹ، سرچ کرنا ہے گوگل پہ کھانے کے بعد کی دعا، یاد ہے، یاد تو ہے لیکن اس کے صرف الفاظ دیکھنا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا، اس کے صرف الفاظ دیکھو اور اس پہ غور کرو کہ کیا کیا ہے۔ تو یہ کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ گرامر میں پرفیکٹ ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے اگر کوشش کریں گے تو ایک تو آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے، اور دوسرا اس کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے، دوسروں کو سمجھانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ بھائی اس کے یہ معنی یہاں سے نکلے، تو سامنے والے کو بھی سمجھانا ہے، اور یہ جو ہم نے سیکھے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تو اس کی کوشش کریے۔ ایک میری رائے ہے، باقی آپ لوگ عمل کرنا یا ایکسپٹ کرنا یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حکمت عطا فرمائے قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور دوسروں تک پہنچانے کی۔ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہماری مرضی پہ مت چھوڑو حافظ صاحب، آرڈر دیو۔